हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम एरिस्टोटल के रेवोल्यूशन, काजेज और रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। The search for stability through polity made Aristotle examine the causes for instability, change, and revolution and prescribe remedies against unnecessary and incessant change. हुकूमत या आइन के ज़रिए अमन की तलाश में अरस्तू ने बदअमनी, तब्दीली और इनकलाब की वजूहात की जांच पड़ताल की और गैर ज़रूरी और मुसलसल तब्दीली के खिलाफ इलाज तजवीज़ किया। Unlike Plato, who did not accept change and equated it with decay and corruption, अफलातून के बरक्स जिसने तब्दीली को कबूल नहीं किया और इसे सड़ने और करप्शन के बराबर करार दिया। Aristotle, on the contrary, regarded change as inevitable. इसके बरक्स अरस्तू ने तब्दीली को नागुज़ीर या ज़रूरी समझा। Change represented movement towards an ideal. Change एक परफेक्ट निज़ाम की तरफ तहरीक की नुमाइंदगी करती है। Unlike Plato, Aristotle accepted the possibility of progress. अफलातून के बरक्स अरस्तू ने तब्दीली के इम्कान को कबूल किया। Things changed because they had the potential to inch towards perfection. चीज़ें तब्दील हो गई क्योंकि इनमें परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद थी। Aristotle derived his conception of change from his understanding of science and nature. अरस्तू ने साइंस और नेचर की समझ से ही तब्दीली का तस्वुर लिया। Stability and revolution were important in Aristotle's agenda of political ideas. अरस्तू के सियासी नज़रियात के एजेंडे में अमन और इनकलाब अहम था। Having perceived a constitution as containing the essence of a state, किसी रियासत की बुनियाद और इसके आइन को समझना, Aristotle discussed general causes of revolution and then looked into the reasons why individual constitutions changed. अरस्तू ने इनकलाब की आम वजूहात पर तबादला ख्याल किया और फिर इन वजूहात का जायज़ा लिया जिनकी वजह से ये आइन तब्दील किए गए थे। Unlike Plato, Aristotle perceived multiple reasons for revolutions. अफलातून के बरक्स अरस्तू इनकलाबों की मुतअद्दिद वजूहात समझता था। Rather than simply a regime's prominent deficiency, हुकूमत की कमी या नुक्स की बजाय। He placed greater responsibility on the rulers to ensure stability and justice. अरस्तू ने अमन और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हुक्मरानों पर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आयद की। The criterion of stability was not majority support for a constitution. अमन की बुनियाद किसी आइन की अक्सरियत की हिमायत नहीं थी, but the fact that no class or faction favored violent change. लेकिन यह हकीकत कि किसी तबके या ग्रोह ने पुरतशद्दुद तब्दीली की हिमायत नहीं की। Revolution could take the form of change in the constitution of a state. इनकलाब किसी रियासत के आइन में तब्दीली की शक्ल इख्तियार कर सकता है। Or the revolutionaries may leave the constitution unchanged. या इनकलाबी आइन में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। And remain content with just accruing more power for themselves. और महज अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करने में मुतमईन रहें। Revolution could make an oligarchy more or less oligarchic. इनकलाब एक ओलिगार्की को कम या ज़्यादा ओलिगार्किक बना सकता है। ओलिगार्की यानी कुछ इंसानों की हुकूमत जो सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद को पूरा करने के लिए हुकूमत करते हैं। एंड a democracy more or less democratic. और जमहूरियत को कम या ज़्यादा जमहूरी बना सकता है। It could be directed against a particular institution or a set of persons in a state keeping the form of government intact. इसकी रहनुमाई किसी खास इदारे या किसी रियासत के अफराद के खिलाफ हो सकती हैं जो हुकूमत को बरकरार रखते हैं। The general causes of revolution were broadly categorized into three: psychological motives or the state of mind, the objectives in mind, the occasions that gave rise to political upheaval and mutual strife. The psychological factors were the desire for equality in an oligarchy.
नफसियाती वजूहात ओलिगार्की में बराबरी की ख्वाहिश थी। ओलिगार्की यानी वो हुकूमत जिसमें कुछ इंसान अपने मफादात को पूरा करने के लिए हुकूमत करते हैं। एंड इनइक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी, और जमहूरियत में अदमी मसावत या नाइंसाफ़ी। द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड इंक्लूडेड profit, honor, insolence, fear, superiority in some form, contempt, disproportionate increase in some part of the state, election intrigues। जहन में रखे गए मकासद में मुनाफा, इज़्ज़त, गुस्ताखी, खौफ, किसी न किसी शक्ल में बरतरी, तौहीन, रियासत के किसी हिस्से में गैर मुतनासिब इजाफा, इंतखाब की साजिशें। willful negligence, neglect of apparently insignificant changes, fear of opposites and dissimilarity of component parts of the state। जानबूझकर लापरवाही, बज़ाहिर मामूली तब्दीलियों को नज़रअंदाज, मुखालिफिन का खौफ और रियासत के हिस्सों में फ़र्क। The occasions that gave rise to revolutionary changes were insolence, desire for profit and honor। इनकलाबी तब्दीलियों को जन्म देने वाले मौक़ात में गुस्ताखी, नफ़ा और इज़्ज़त की ख्वाहिश, superiority, fear, contempt and disproportionate increase in one part or element of the state, बरतरी, खौफ, हकारत और रियासत के एक हिस्से या उनसुर में गैर मुतनासिब इजाफा था। द पर्टिकुलर काजेज वर एनालाइज्ड इन ईच इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन। हर अलग आइन में खास इनकलाब के वजूहात का तज्जिया किया गया था। इन अ डेमोक्रेसी द अनचेक्ड लाइसेंस गिवन टू डेमागोग्स। जमहूरियत में सियासतदानों को कुछ भी करने की लामहदूद या बेलगाम इजाज़त दी जाती है। Who attack the rich and instigate the masses was the cause। जो अमीरों पर हमला करते हैं और आवाम को उकसाते हैं। It could be remedied by granting the right to vote to the poor and the disadvantaged, giving them a stake in the government। गरीबों और पसमानदा अफराद को वोट का हक देने से, हुकूमत में जगह देने से इसका इलाज किया जा सकता है। In an oligarchy, the oppression of the masses and the dissensions within the ruling elite led to instability। एक ओलिगार्की में अवाम पर जुल्म व सितम और हुक्मरान तबके में इख्तिलाफात बदअमनी का बाइस बनता है। In an aristocracy, the policy of narrowing the circle of government was a cause of instability। एरिस्टोक्रेसी में हुकूमत के दायरे को तंग करने की पॉलिसी बदअमनी का एक सबब था। सेडिशन अरोज व्हेन, बगावत पैदा हुई जब द रैंक एंड फाइल ऑफ पीपल वर एक्साल्टेड बाय द आइडिया दैट दे वर जस्ट एज वर्दी एज देयर रूलर्स। लोगों के दर्जात को इस ख्याल से बुलंद किया गया कि वो अपने हुक्मरानों के तरफ लायक हैं या बराबर हैं। When great men were dishonored by those in office, जब ओहदे पर मौजूद अफराद ने मोहतरम इंसानों की बेइज्जती की। When high-spirited individuals were excluded from honors, जब आला हौसलेमंद अफराद को एजाज़ से खारिज कर दिया गया था। And when some within the governing class were poor and the others rich, और जब हुक्मरान तबके में कुछ गरीब थे और दूसरे अमीर। Aristocracies were prone to change when they deviated from the notion of justice। एरिस्टोक्रेसी तब्दील होने का शिकार थी जब वो इंसाफ के तस्वुर से हट गए। An aristocracy might change into a democracy when the poor got the impression that they were treated unfairly। एरिस्टोक्रेसी जमहूरियत में तब्दील हो सकती हैं जब गरीबों को ये तासुर मिलेगा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। Compelling them to revolt, यही इन्हें बगावत पर मजबूर करेगा। In a monarchy, sedition was usually due to fear, contempt, desire for fame, insults, hatred and desire by neighboring states to extend their boundaries। बादशाहत में बगावत आमतौर पर खौफ, तौहीन, शोहरत की ख्वाहिश, तौहीन, नफ़रत और हमसाया रियासतों की हदूद में तोसी की ख्वाहिश की वजह से
हुआ करती थी। The remedy for preventing a revolution in a monarchy was by inculcating a spirit of obedience to law, especially in small matters. बादशाहत में इनकलाब को रोकने का इलाज कानून की इताअत का जज्बा पैदा करना, ख़ास तौर पर छोटे छोटे मामलात में, and to distrust charlatans and demagogues, और नकली आलिमों और सियासतदानों पर भरोसा न करना। In case of oligarchies and aristocracies, oligarchy और aristocracy के मामले में, the remedy was in ensuring that rulers were on good terms both with the civic body and those who had constitutional rights. इसका तदारुक इस अमर को यकीनी बनाना था कि हुक्मरान मुलाजमीन और आईनी हुकूक रखने वाले दोनों के साथ अच्छा सलूक करें। None would be raised too high above the level of his fellow citizens. किसी को भी अपने साथी शहरियों की सतह से बहुत ऊंचा नहीं उठाया जाएगा। For inequalities of offices and honors more than inequities in wealth drive men to rebellion. दफातर और एजाज़ की नाइंसाफ़ी दौलत की नाइंसाफ़ी से ज़्यादा लोगों को बगावत पर मजबूर करती हैं। Small honors would have to be conferred over a long period of time, ensuring that none became very influential in rapid succession. तवील अरसे के लिए छोटे एजाज़ात से नवाजा जाना चाहिए। A magistrate would be appointed to keep vigil over those who did not live in a manner that was in harmony with the spirit of the Constitution. एक मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जाएगा जो उन लोगों पर निगाह रखे जो आइन के मुताबिक नहीं रहते थे। In order to neutralize the consequences of a flourishing social group, फल फूलने वाले माशरती ग्रुप के नताइज को बेअसर करने के लिए, the management of the state could be given to those who were not doing so well. रियासत का इंतज़ामिया उन लोगों को दिया जा सकता है जो इतना अच्छा नहीं कर सकते थे, और by fusing the rich and the poor sections of society, या माशरे के अमीर और गरीब तबकों को मिलाकर, और by strengthening the middle class, या मिडल क्लास को तकवीयत देकर। A tyrant could prevent instability through a divide and rule policy. एक जालिम बादशाह डिवाइड और रूल पॉलिसी के ज़रिए बदअमनी को रोक सकता है। Encouraging क्लास हैटर्ड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के दरमियान तबकाती नफरत को फ़रोग देने से। एंड क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम, और एक मजबूत जासूसी निज़ाम तश्कील देकर। ही वुड हैव टू अपीयर टू बी रिलीजियस, इसे मजहबी होना पड़ेगा। इरेक्ट पब्लिक वर्क्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के रोज़गार के लिए काम करना होगा। कट डाउन ऑन लैविश एक्सपेंसेस एंड ऑब्जर्व कन्वेंशनल राइट्स एंड प्रैक्टिसेस, शाहाना अखराजात में कमी और रिवायती रसूमात का मुशाहिदा करना होगा। इन हिज एडवाइस टू द टायरेंट ही एंटिसिपेटेड मैकावली, जालिम को मशवरे देकर अरस्तू ने मैकावली की पेशनगोई की। Aristotle pointed out that the source of revolutions and seditions was usually the image of the government. अरस्तू ने निशानदही की कि इनकलाबात और बगावतों का ज़रिया आमतौर पर हुकूमत होती थी। Care would have to be taken to prevent offices from being used for personal gain. दफातर को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए एहतियात करना होगा। In the interest of constitutional stability, आइनी इस्तेहकाम के मफाद में, 3 qualities were required for office bearers in high positions, and these were: आला ओहदों पर फाइज ओहदेदारों के लिए 3 खसूसियात की ज़रूरत थी, और वो ये थी: लॉयल्टी टू द एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कायम आइन के साथ वफादारी; आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इंतज़ामी सलाहियत; इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, गुडनेस एंड जस्टिस इन फॉर्म्स, सदाकत, नेकी और इंसाफ की सालमियत। Repeatedly, he emphasized on a fusion between oligarchic and democratic forces. बार बार अरस्तू ने
ओलिगार्की और जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान मिलावट पर जोर दिया। He also recommended government propaganda in education. अरस्तू ने तालीम के सिलसिले में सरकारी प्रोपेगेंडा करने की भी सिफारिश की। Respect for law even in small things. छोटी छोटी चीज़ों में भी कानून का एहतराम। And justice in law and administration. और कानून और इंतज़ामिया में इंसाफ। That is equality according to one's contributions as measures to prevent revolutions. यानी किसी के ताउन के मुताबिक इंसाफ इनकलाबात को रोकने के इक़दामात के तौर पर हैं।